नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यवर्धन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इसमें हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। लेकिन सबसे पहले क्विक मार्केट चेक ले लेते हैं। अभिषेक, इस वक्त मार्केट में करंट अपडेट क्या है, किस तरह का ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है एक्सपायरी के दिन? जी शुक्रिया पूजा। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि आज शुरुआत जैसी भी हुई हो, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं बाजार में आती हुई दिख रही है और ये शॉर्ट कवरिंग बाजार को 17,000 के ऊपर ले गई है। 87-88 अंकों की तेजी है निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो कल वहां अच्छी रिकवरी थी और आज उस रिकवरी को न सिर्फ सस्टेन कर रहा है बल्कि और उसको हवा मिल रही है। रिकवरी को 275 अंक ऊपर है। आज ब्रॉडर मार्केट की भी तस्वीर बहुत अच्छी है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आज आपको दिखेंगे। और कल जिन शेयरों की पिटाई हो रही थी अडानी ग्रुप में, आज ठीक वैसा ही रिवर्सल वहां पे आ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, कल ये 6-7% ये शेयर टूटे थे। आज उसकी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आई थी अपने प्लेस शेयर को लेकर और एक्सचेंजेस ने भी उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था। दूसरी ओर ऑटो, कल हमने देखा था कि रिवर्स गियर में थे, आज बिल्कुल टॉप गियर में ये ट्रेड कर रहे हैं। आयशर और M&M में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन साउथ इंडियन बैंक को लेकर बड़ा अपडेट आया है और उनके मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा। Won't be there beyond September. Tell us, what's the transition plan? Thanks for having me on the call. As per the terms of my agreement with the bank, my tenure was till September end. So this was, and you know that I've been in the industry for long. So the reason for not opting for reappointment is purely for personal reasons. I want to spend more time with family, and that's a clear reason. And I'm telling you that it has nothing to do with any of the official or organization-related things. Because you know that I have been making, ever since my joining this bank, I have done so many big changes in the organization, and it is obviously with the full support of the entire board as well as the 9,000 plus employees who are part of this organization. So as I'm talking to you, we are also initiating a lot of changes even as I'm talking to you. So till September end, till last day of my work, I'll continue to ensure that we put everything in place and the organization is continuing to be on the right track. In fact, this is not a sudden thing. I've been preparing the leadership team and the changes in the organization with the perspective that any change which I'm going to be bringing in should be staying in the organization for long. And it is obviously with the support and help of the entire workforce who are convinced that the path which we should take is the right one to do. Therefore, I have a clear 6 more months, and the incumbent anyway, whoever is will be taking a charge from me. Definitely, there will be a good overlap between me and him or her, and I'll ensure that everything is done very smoothly and the transition happens very smoothly. And clearly, the strategy which we are pursuing, which is clearly yielding results, will continue to be improved by the new person rather than market really needing to worry about whether anything will turn back, because the changes which has been brought in are how typically a well-run banks will have to perform. So there is no question of any of this getting reversed by anybody coming in. So our endeavor is to ensure that the transition happens very smoothly, and all the initiatives which are taken, which is already yielding results, will only get reinforced, will only get enhanced with more and more new initiatives, which will be good for the organization. Those are very reassuring words, Murli, I must say. Give us a flavor of what kind of candidates are you analyzing and working closely? Is it because our sources say that it's a mix of internal candidates which you have been grooming, also analyzing, scanning the environment for external candidates, and Hunt Partners, as per our sources, is helping you. Can you confirm that or add some more color on that? No, the process has just started. So clearly, the NRC of the bank is engaging with the search agency, and clearly, this being an important role and important position. And since the market environment is also in a way that one really needs to put in their best effort in order to exploit the opportunities which might come. Therefore, it will be obviously very rigorous process. We will ensure that
the candidates who are shortlisted as well as who are eventually going to be chosen, indeed clearly have had the experience and strength in managing these changes, because you know that in the banking space in the last 3 years, so many changes have happened, and as we are talking, there are many changes which keep happening in the market with the liquidity situation, with the inflation situation, and with the way market is also a bit slowing down in terms of CASA, in terms of the advances getting impacted by the liquidity situation in the market, etc. Obviously, we are looking for people who have had this experience of handling such complexities. And also they need to ensure that, the strategy which is working well for the organization is taken to the next level, so that the organization is taken to a new level. So we have just started the process. So it will be, obviously it will be a rigorous process. And we'll ensure that it is the transition happens to the right person who is competent to take it to the next level. One last question, Murli. Can you share with us, the immediate priorities you'll be working for? Yes, there's a big turnaround which has happened and now progress towards growth. If your last results, quarterly results were any guide, what will the top 2-3 priorities be from your side to the new MD in continuation of this growth which we have seen in the numbers or visibility 2-3 years ahead? See, when I took charge, the things which were really pressing hard on the bank one was on capital adequacy and the other one was on PCR. And as you know, you must have seen also our results as of December. So we have come out with good results, and both in terms of capital adequacy as well as in terms of PCR, we are now in a far better position than where I started with. And I am glad to say that it will only keep improving from now on. And we have not even factored this year's internal accruals into our capital adequacy. So with that, I'm sure capital adequacy will be even looking better than what it is today. So therefore, these two, in my view, are no longer a real worry. But then having said that, depending on the opportunities available for growth in advances, if there is a need for us to go for fresh equity raise, I'm sure the path and the amount and quantum, etc., we will take appropriate decisions to tap the market. Therefore, they are not, though it will be a very important decision, but then it's not something which we need to really decide in a tearing hurry. But as far as the other aspects are concerned, clearly, there is a very clear vision statement which we brought out where we said we will continue to work on improving ROE, ROA, NPA levels, NIM, and all these will continue to be the focus for the bank. Profitability will continue to be the focus of the bank. So we will certainly work on all these areas, and I have already given guidance that by end of March, we would want to be at certain levels in each of these parameters. And NIM, I'm wanting to have the bank at about 3.5% level, and we would want the NPA levels to at least net NPA levels, etc., should be below 2% kind of level. So these are some of the indications which I've already given, and we are on the track to reach many of those milestones. All right, Murli, very good talking to you today. Those were reassuring words, very specifically, and I'm तो मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन्होंने रीअपॉइंटमेंट नहीं लेने का फैसला आखिर क्यों लिया। तो उन्होंने हवाला दिया है कुछ व्यक्तिगत कारणों का, कुछ पारिवारिक वजहों का, जिसके चलते अपने टर्म को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। सितंबर तक हालांकि अपने वो पद पर बन रहेंगे। आपको बता दें कि 2020 में उनकी एमडी एंड सीईओ पद पर नियुक्ति हुई थी और ख़ास ये है कि वो पहले आईसीआईसीआई बैंक में जनरल मैनेजर के पद पर रह चुके हैं और उम्मीद ये थी कि वो बैंक को नई दिशा देंगे यहाँ से। और उनके कार्यकाल में अगर हम पिछले तिमाही की बात करें तो बैंक के जो नतीजे आए थे बहुत अच्छे आए थे दिसंबर तिमाही के। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि 12% का एक डीप कट है, 16-17% डाउन था ये इस खबर पर शुरुआती कारोबार में। हल्की सी रिकवरी ज़रूर आ रही है, लेकिन 15 रुपये के आसपास के भाव इसके शेयर के हैं साउथ इंडियन बैंक के। और इन्होंने बोला कि एनपीए में कमी, आरओई में बढ़ोतरी पर बैंक का फोकस बना रहेगा और पर्सनल रीजंस, कुछ फैमिली रीजंस उन्होंने साइट किए इस फैसले के पीछे। लेकिन अचानक से इस डिसीजन के बाद, अचानक से इस न्यूज़ के आने के बाद निवेशकों में घबराहट ज़रूर है। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर ज़रा राय ले लेते हैं। हमारे आज के खास एक्सपर्ट शेयर इंडिया के रवि सिंह हमारे साथ हैं। रवि, साउथ इंडियन बैंक वैसे तो 15 रुपये के आसपास का शेयर हो गया है, 12% गिरा है, लेकिन अगर रुपये टर्म्स में बात करें तो 2 रुपये शेयर ही नीचे है। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ज़रूर लगेगा मुरली रामकृष्णन के जाने से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि
स्मूथ ट्रांजिशन वो इंश्योर करेंगे। और अभी भी यहाँ से अगर हम मार्च से लेकर सितंबर तक की अगर हम टाइम को देखेंगे तो 6 महीने के आसपास का समय है। तो जो भी एमडी सीईओ अपॉइंट किया जाएगा उसके साथ क्लोजली वो काम करेंगे और ट्रांजिशन को स्मूथ करने का काम वो करेंगे। और ऐसा बैंक के मैनेजमेंट ने कहा भी है और वो खुद स्वीकार भी कर रहे हैं साहब। आपको लगता है कि यहाँ से अब ज़्यादा डिटोरेशन नहीं होना चाहिए शेयर के प्राइस में? और अगर मान लीजिए किसी को अगर मौके दिख रहे हैं तो आपकी राय क्या होगी उनके लिए? रवि जी देखिए, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए अभिषेक जी, तो मार्केट में आज शायद थोड़ा सा इसको निगेटिव ले रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर बढ़ी हुई है, बैंकिंग के ज्यादातर स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। लेकिन मैनेजमेंट जब इस तरीके से चेंजेस होते हैं तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा डर हो जाता है। हालांकि 12% की गिरावट अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ शेयर काफी बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो पिछले क्वार्टर्स के जो आपने बात कही, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है अभिषेक जी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के तो थोड़ा सा जरूर एक क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन इस बार की एक्सपेक्टेशन काफी हद तक कम है। इसी वजह से शेयर 22 रुपए से गिरता हुआ 14 रुपए आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 12 रुपए तक की ये गिरावट और दिखा सकता है। तो थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट तो जरूर पड़ता है, लेकिन आज चूंकि 11 बजे शायद अनाउंसमेंट है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आगे देखने लायक होगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इन्वेस्टर को यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर 12 रुपए के नीचे स्टॉक जाता है तो एक बार को रिविजिट करने की पोजीशन यहाँ पर जरूरत है और शायद एग्जिट लेना पड़ सकता है। बैंक पर ये व्यू, लेकिन साउथ इंडिया से याद आया कि आईपीएल का पहला मुकाबला परसों खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। और आईपीएल जो कि पिछले 16 साल से इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है, हालांकि ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर बहुत बड़े फेरबदल किए गए हैं। फ्रेंचाइजीज बिल्कुल खुलकर पैसा बहा रही हैं, बिल्कुल पानी की तरह पैसे खर्च कर रही हैं। तो उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, फ्रेंचाइजीज के लिए आईपीएल एज ए ब्रांड भी अपने आप को कितना मजबूत करेगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एलारा कैपिटल के सीनियर वीपी करण थोरानी। करण, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। करण, निश्चित तौर पर एक्साइटमेंट तो सभी को होगा आईपीएल को लेकर। अभी विमेंस आईपीएल भी खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं ये गर्व की बात होती है जब हम ये कहते हैं कि आईपीएल जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। लेकिन आप जरा ये बताइए, थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जरा टटोलेंगे और ये समझेंगे कि जो ब्रॉडकास्ट राइट्स में जो चेंजेस किए गए कि टीवी के राइट्स किसी और के पास हैं, डिजिटल के किसी और के पास हैं, आप इस पूरे समीकरण को कैसे देख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि सबके लिए जो आईपीएल होगा ये विन विन सिचुएशन होने जा रहा है, 16वां एडिशन भी? गुड मॉर्निंग जी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर हम आईपीएल की बात करें, डेफिनेटली ये जो टीम ओनर्स है इनके लिए बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है। बिकॉज लास्ट ईयर जो मीडिया राइट्स की जब ऑक्शन हुई थी जून में, तो मीडिया राइट्स की ऑक्शन 48 to 49,000 करोड़ के आसपास हुई थी 5 साल के लिए। अगर हम प्रीवियस साइकिल की बात करें तो ये ऑक्शन की वैल्यू वो टाइम थी 16,000 करोड़, राइट। तो प्रीवियस ऑक्शन और अभी के ऑक्शन में फर्क ये है कि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ गए। लेकिन अगर हम लाइक टू लाइक बेसिस की बात करें, नंबर ऑफ मैचेस सेम रखी हुई तो भी दुगना होता है। तो इसके हिसाब से जो टीम्स के रेवेन्यूज है, जो फ्रेंचाइज है बेसिकली आपकी जो सन टीवी की फ्रेंचाइज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की फ्रेंचाइज है, रिलायंस की फ्रेंचाइज है, इन सारी टीम्स की रेवेन्यू एटलीस्ट 2 से 2.5 टाइम बढ़ सकती है। बिकॉज इनकी जो मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है मीडिया राइट्स। तो 70 से 80% की जो रेवेन्यू बनती है ये कंपनीज के लिए वो मीडिया राइट से आती है। तो बिकॉज ये मीडिया राइट ऑक्शन में इतना बड़ा नंबर मिला है, ये इनकी रेवेन्यू बन सकती है। तो मेरे हिसाब से टीम्स के लिए बहुत बड़ा विन विन है, आईपीएल एज अ फ्रेंचाइज के लिए बहुत बड़ा विन विन है। बिकॉज अगर टीम्स की रेवेन्यू बढ़ेगी तो ये जो टीम्स है इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, इसके हिसाब से आईपीएल फ्रेंचाइज का वैल्यूएशन भी बढ़ता दिखता है। तो ये बहुत बड़ा विन विन है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये टाइम क्या हुआ है, कि ये टाइम जो टीवी और डिजिटल राइट्स है वो अलग अलग दिए गए हैं अनबंडल करके। हमेशा से अगर हम बात करें तो टीवी डिजिटल राइट्स हमेशा साथ में दिए जाते थे, जो स्टार के पास था पिछले 2 साइकिल का। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के लिए, मीडिया राइट्स ओनर्स के लिए। बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है मीडिया राइट्स के पीछे। तकरीबन अगर हम बात करें 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं सालाना एवरेज अगर हम बात करें तो, जिसमें से 5,000 करोड़ खर्चा किया है टीवी राइट्स के लिए, 5,000 करोड़ खर्चा किया है डिजिटल राइट्स के लिए। तो इसकी वजह से क्या होएगा कि आई थिंक एक बहुत बड़ा वॉर टाइप हो जाएगा टीवी और डिजिटल में। क्योंकि इससे एडवर्टाइजर्स भी काफी मिक्स हो जाएंगे। तो पहले के टाइम पे अगर आप स्टार की बात करें तो उनके पास टीवी डिजिटल दोनों था, तो वो क्या करते थे, एडवर्टाइजर को बंडल डील देते थे कि टीवी के साथ डिजिटल भी ले लो और इतने मुझे पैसे दे दो।
अब क्या हो गया है कि दोनों अलग तरीके से एडवर्टाइजर्स को चेस करेंगे। डिजिटल वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है, हमारी नंबर ज्यादा है, और एडवर्टाइजर्स को चेस करेंगे। टीवी वाले अपनी डिफेंस रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो डिवाइड आ गया है, इसकी वजह से जो मोनेटाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की आईपीएल की बात करें, मेरे हिसाब से तकरीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ की रेवेन्यू आई थी टीवी डिजिटल, जब एक एक स्टार के पास था। अब दिस टाइम अराउंड आई थिंक जो टीवी डिजिटल की रेवेन्यू है, अगर हम बात करें, अभी तो मार्केट सिचुएशन भी चेंज हो गया लास्ट ईयर से ये साल में। न्यू एज कंपनीज एडवर्टाइजिंग कम करती है, एड बजट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। बट उसको हटा के भी अगर हम बात करें तो 25 to 30% का नेगेटिव इंपैक्ट है, बिकॉज एडवर्टाइजर्स कुछ होंगे जो बोलेंगे मुझे सिर्फ डिजिटल करना है, या तो बड़े एडवर्टाइजर्स होंगे वो बोलेंगे मुझे सिर्फ टीवी करना है। तो इसकी वजह से आई थिंक ये डिवाइड की वजह से इनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है मीडिया कंपनीज का, जिन्होंने ये राइट्स लिया है, उन पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है। बिल्कुल। ये जो आपने टीवी से डिजिटल ट्रेंड के तरफ शिफ्ट होने की बात की है, इसी पर अगला सवाल था। ये आप कंसर्न तो देख रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है कि फिर इसमें मीडिया कंपनी को कुछ स्ट्रैटेजिकली कुछ करने की ज़रूरत है, या फिर पूरी तरीके से डिजिटल पर ही जो अटेंशन है, फोकस है, वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, फ्रॉम अ फ्यूचर स्टैंड पॉइंट डिजिटल डेफिनेटली फ्यूचर है, राइट, बट डिजिटल में काफी कंसर्न्स भी है, राइट। अगर हम बात करें डिजिटल में, सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये एक बड़े स्केल पे नहीं आ सकता इंडिया में, बिकॉज अगर हम डिजिटल की बात करें, इंडिया में स्मार्ट टीवीज खाली 4 करोड़ स्मार्ट टीवीज है, जबकि हमारे पास 20 करोड़ हाउस होल्ड है। तो स्मार्ट टीवी के पेनिट्रेशन बहुत कम है। अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें, जहां से मेन डिजिटल कंजम्पशन आएगा, उसका भी पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। हार्डली कुछ 2 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है टुडे इन आवर कंट्री। सो आई थिंक ये दोनों नंबर को देखते हुए डिजिटल की ग्रोथ डेफिनेटली होएगी, बट वो स्लो एंड स्टडी होएगी। एक साल में ऐसा नहीं कि डिजिटल ग्रोथ होएगी। दूसरा, आई थिंक बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है कि ये टाइम आईपीएल फ्री है। इसके पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल में आईपीएल के लिए सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ता था, अभी सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, पूरा एड ड्रिवन मॉडल कर दिया गया है। सो बहुत सारे डिस्ट्रप्टिव चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर अराउंड 75 से 80% की जो रेवेन्यू थी आईपीएल की, वो टीवी से आई थी, और बाकी 20-25% आपकी डिजिटल से आई थी। तो इस साल डिजिटल का रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखता है 30 से 35%, बट उसका मेजर रीजन ये होगा क्योंकि आईपीएल डिजिटल पे फ्री कर दिया गया है, राइट। ऐसा नहीं है कि लोगों को टीवी पे आईपीएल नहीं देखना है, बिकॉज आई थिंक अगर हम आईपीएल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, ये एक बहुत ही कंपेलिंग जॉनर है। पीपल आईपीएल जो लोग देखते हैं वो लार्ज ग्रुप्स में देखते हैं, बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। तो इंडिया में अगर बड़े स्क्रीन, अगर स्मार्ट टीवी के नंबर ही छोटे हैं, तो डिजिटल पे बड़ा नंबर लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम होगा। दूसरी बात यह कि मोबाइल पे लोग आईपीएल जरूर देखते हैं, लेकिन जो टाइम स्पेंड करते हैं एक मैच देखते वक्त, वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर 3 घंटे की मैच है तो मे बी किसी ने आधा 1 घंटा मोबाइल पे देख लिया, बाकी जो मेजर चंक ऑफ टाइम है वो बंदा टीवी पे देखेगा। बिकॉज टीवी पे आपको क्या है कि एक्सपीरियंस मिलता है, बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने का मजा अलग होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत डिफिकल्ट चीज होगी कि सारा कुछ डिजिटल पे चला जाए और टीवी यहाँ बहुत बड़ा लूजर हो जाए। बिकॉज टीवी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोपोजिशन है कि ये जो कंटेंट है, स्पोर्ट्स कंटेंट है, ये लोग बड़े ग्रुप्स में देखते हैं और बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, जो कि डिजिटल में अभी तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है स्मार्ट टीवी का और डेटा। करण जी, मैं वही आपसे पूछने जा रहा था कि देखिए, टीवी व्यू करने के डायनामिक्स भी तो चेंज हो गए। आज हम डिजिटल पे जरूर है, लेकिन हम अल्टीमेटली टीवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपसे ये जानेंगे कि निश्चित तौर पर इतना बड़ा जब स्पोर्टिंग इवेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो हर एडवर्टाइजर आना चाहता है इस प्लेटफॉर्म पर। तो क्या जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं, उनको अब कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा? उसके लिए क्या वो अपनी इच्छा दिखाएंगे खर्च करने को लेकर, या फिर थोड़ा सा उसके बारे में फिर से वो प्लान करेंगी अपना स्ट्रेटजी को? मेरे ख्याल से कोई एडवर्टाइजर ज्यादा खर्च नहीं करेगा। एडवर्टाइजर के बजट्स तो वैसे ही रहेंगे जैसा होते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ये साल में ज्यादा ग्रोथ भी नहीं आएगा, बिकॉज एवरी एडवर्टाइजर इज कटिंग कॉस्ट इन सम और द अदर वे। तो अगर हम मान के चले कि एक एडवर्टाइजर जिसने 100 रुपए लास्ट ईयर खर्चा किया था, वो ये साल भी 100 रुपए खर्चा करेगा। इफेक्टिवली उसका जो स्प्लिट है डिजिटल में, लास्ट ईयर 25 रुपए था, टीवी पे 75 था, तो वो मेरे हिसाब से 25 का 30-35 हो जाएगा और टीवी का 60-65 हो जाएगा। तो एक स्प्लिट चेंजिंग जो चीज है वो तो स्ट्रक्चरली दिख ही रही है कि अगले 5 साल में डिजिटल इज द फ्यूचर। बट जब हम लाइन शेयर की बात करें, जो लार्ज शेयर की बात करें, वो अभी तक टीवी पे रहेगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि टीवी इज बेसिकली मास कैंपेनिंग। तो डिजिटल में क्या होता है कि आपकी जो रीच होती है
वो कोई ना कोई तरीके की लिमिटेशंस होती है। टीवी इज मास कैंपेनिंग बिकॉज टीवी में लोग बड़े नंबर्स में देखेंगे। टीवी में जो ऑडियंस है आपका वो मिडिल एज, ओल्ड एज, यंग एज, सारा एज का ग्रुप ऑडियंस होता है। तो मेरे ख्याल से जो टीवी का जो प्रोपोजिशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई थिंक 3 से 5 साल के बाद टीवी को थ्रेट है, अगले 3-4 साल में टीवी को थ्रेट दिखता नहीं दिखता। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है आपका करण कि भले ही डिजिटल की पैठ बढ़ रही हो, लेकिन अभी 4-5 साल तक कोई टेंशन की बात नहीं है। टीवी पर ज्यादा आईपीएल देखा जाएगा और उसको अभी भी एक एज मिलता रहेगा, उसको एडवांटेज एक मिलता रहेगा। खैर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और आईपीएल के बारे में, इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। तो शुक्रवार से आईपीएल का आगाज हो जाएगा 16वें सीजन का और महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और नई टीमों के आने से इस बार का आईपीएल सीजन और खास हो गया है। इस बारे में आईपीएल सीजन में क्या खास रहेगा, इस पर हमारे सहयोगी शरद और आदित्य ने खास चर्चा की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य ईटी नाउ स्वदेश से। और मैं हूं शरद दुबे। और आदित्य, आईपीएल के तो 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और 15 साल कंप्लीट हो गए आईपीएल के, पर क्रिकेट की अगर हम बात करें शरद, तो क्रिकेट और मैदान का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और ऐसे ही एक मैदान में फातिमा क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में है आज इस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन बचपन की यादें रहती है आईपीएल की। मुझे पता है, मैं स्कूल में था आईपीएल में और बहुत इंटरेस्ट आया था। तो आपका कुछ फेवरेट मोमेंट्स बताइए आईपीएल के बारे में। वेल शरद, अगर आईपीएल के फेवरेट मोमेंट्स की बात करें, साल 2008 की बात करें जब आईपीएल का आगाज़ हुआ था, तब आईपीएल में सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की जर्सी में, राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में और सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में, इससे बेहतर यादें और क्या हो सकती हैं आईपीएल की। आदित्य, एक क्वेश्चन पूछना है मेरे से आपसे, बचपन का है। सबसे पहला डिलीवरी आईपीएल 2008 में किसने किया और किसने फेस किया, ये बताइए। वेल शरद, फेस किसने किया ये तो मुझे याद है, सौरव गांगुली ने फेस की थी, बट वो डिलीवरी किसकी थी ये आप बता दीजिए। मुझे लगता है वो प्रवीण शर्मा की थी। प्रवीण कुमार आई गेस इज द करेक्ट आंसर। वेल, मैं आपको टेस्ट कर रहा था, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। लेकिन एक और सवाल मैं पूछूंगा। जी शरद। ब्रेंडन मैकलम का स्कोर क्या था पहला? और राइट, तो ये था 16वें शुक्रवार को 16वां सीजन शुरू हो जाएगा आईपीएल का, और उस पर एक दिलचस्प चर्चा हमारे दोनों ही एनालिस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए, आईपीएल पर कवरेज हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। और कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं हमारे खास सेगमेंट में कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी के एबीसीडी में आज हम बात करने वाले वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की। फ्यूचर्स या ऑप्शंस के कुल खुले सौदे को हम ओपन इंटरेस्ट में काउंट करते हैं और खरीदारी और बेचने वाले दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर ओपन इंटरेस्ट बनता है। यानी सिर्फ अगर लॉन्ग पोजीशन को जोड़कर नहीं, जितने लॉन्ग है जितने शॉर्ट्स है, यानी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट पोजीशन मिलाकर सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट बनेगा। और ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए अगर 10,000 है और 10,000 लॉन्ग को कॉल्स है और 10,000 शॉर्ट पोजीशन है, तो ओपन इंटरेस्ट 10,000 ही होंगे, ये नहीं कि 20,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम से ये कितना अलग होता है, वॉल्यूम हर इंट्राडे के हिसाब से तय होते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितने भी खुले सौदे होते हैं सभी ओपन इंटरेस्ट में शामिल होते हैं, जबकि वॉल्यूम इंट्राडे के हिसाब से उसी हिसाब से। तो इन दोनों से संकेत ये मिलते हैं कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि बाजार का इंटरेस्ट किस तरफ है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, किस तरह के सौदे आपको बनाना चाहिए। सबसे पहले अगर भाव बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं, इससे साफ संकेत मिलता है कि लॉन्ग पोजीशन बन रही है, यानी तेजी के सौदे बनाए जा रहे हैं, बाजार में तेजी के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं। वहीं ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन भाव गिर रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि यहां पर मंदी के सौदे यानी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बन रहे हैं। तो ये हम एक टेबल के जरिए आपको दिखाते हैं, अगले प्लेट पे आपको लेकर चलते हैं, जिस टेबल में आप साफ देखिए भाव और ओपन इंटरेस्ट में बढ़त, तेजी के संकेत, भाव और ओपन इंटरेस्ट में गिर रहा है, यानी तेजी के सौदे में कमी हो रही है, यानी लॉन्ग की अनवाइंडिंग कर रही है टेक्निकल भाषा में आप समझे तो। भाव नीचे की तरफ आ रहे हैं,
ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है। भाव में तेजी है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिख रही है, यानी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही। तो ये कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिससे आप तय कर पाएंगे कि बाजार में आपको किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए और क्या संकेत आपको मिलते हैं। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी प्राइस ट्रेंड के बारे में आपको बता देता है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और एक टेक्निकल पैटर्न अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के जरिए भी आप बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम से क्या संकेत मिलते हैं, कैसे इस तमाम चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैसे बनाने के लिए, आपको विश्वमो ने समझा दिया है। और आज के दिन पर ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज है मार्च सीरीज़ की एक्सपायरी, इस साल की आखिरी एक्सपायरी और लगातार चौथी नेगेटिव एक्सपायरी होने जा रही है। और ये जो समीकरण बन रहे हैं 22 साल के बाद बन रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखने क्या तेज़ी पर कारोबार हो रहा है। 17,000 का जो अहम स्तर था और जिसको लेकर कहीं कहीं सवाल भी थे कि क्या आज ये लेवल पार होगा। जी हाँ, अच्छे से पार किया है बाजार ने, अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन आज हमने वादा किया था कि आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजी दिन भर बताएंगे और कमाई के मौके जहां पर बनेंगी वो आपके लिए सामने लेकर आएंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आपको एफएनओ का पूरा एनालिसिस भी करके बताते हैं, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, निफ्टी की रेंज समझ रहे हैं, बैंक निफ्टी को लेकर राय जान रहे हैं। और फिलहाल डिम्पी ये लेकर जुड़ गए हैं कि इस घंटे अगर आपको ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी बनाकर कमाई करनी हो तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सी स्ट्रेटजी होगी। डिम्पी, ओवर टू यू। अभिषेक, दो चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपने ये तो पता कर ही लिया हमसे कि यहाँ कौन सा ऑप्शंस का सौदा है, साथ साथ हम आपको एक्सपायरी का एक पोल भी बताएंगे कि इस बार की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। तो खैर, पहले आपने जो सवाल हमसे पूछा है कि इस बार का कोई ऑप्शंस का सौदा जो कि अच्छा रिटर्न दे सके, तो मार्च में तो कुछ करना नहीं अब, क्योंकि आज तो सीरीज़ हो रही है एक्सपायरी, कल की छुट्टी है। तो अब जो भी काम कीजिएगा अप्रैल में कीजिएगा। HDFC बैंक की 1600 स्ट्राइक की कॉल है 37 रुपये की, वो आप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। HDFC बैंक की ए एट द मनी है, जो भी आप रेट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये $1600 के आसपास का, ये 1595 का रेट है इसी की, यानी कि मेन स्ट्राइक की 1600 की आपको कॉल लेनी है। उसका टारगेट है 60 रुपया, स्टॉप लॉस रखना है 30 रुपया। रेट क्या होगा, 37 रुपीज़ है। तो जाएंगे सिर्फ 7 रुपये और आएंगे ऑलमोस्ट डबल। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़, जब हम ये कॉल ले भी रहे थे तो हमने HDFC को टिपिकली चेक भी किया। तो हमने आपको आज सुबह भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, HDFC उन चुनिंदा शेयर्स में से एक है जो कि सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बना। कंट्रीब्यूशन के तौर पर उसने निफ्टी को कम से कम 20 पॉइंट दिए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये स्ट्रेंथ वाला शेयर है। 37 रुपये में आपको ले लेनी है कॉल, 30 रुपये का टारगेट, 60 रुपये का टारगेट और 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। हमने आपके बिना पूछे ही एक पोल के बारे में भी जिक्र कर दिया है, तो पोल भी हम आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमने निफ्टी का जो पोल किया, हमने 16,800 को बेस माना पहले और 17,200 तक लेके गए। इसी के बीच में हमने 3 कड़ियाँ बनाई। 16,800 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 20% है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई हैं या इस सीरीज एक्सपायरी को एक रेंज में देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है उनके लिए। कहाँ पे कटान हो सकती है, 17,000 के ऊपर थोड़े चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे पहले ही 5 मिनट में 17,000 के ऊपर आके हम ट्रेड करने लग गए थे। 17,200 पार होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए जो रेंज बनती है 45% की, वो 17 से 17,200 के बीच की बनती है और 35% बोल रहे हैं 16,800 से 17,000। अगर आप एक का हाई और दूसरे का लो देखेंगे तो मीन निकलेगा 17,000। तो आज आप उम्मीद करके रखिए कि 17,000 के ऊपर आपकी सीरीज एक्सपायर हो सकती है। आते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उसको 4 हिस्सों में बांटना पड़ गया। पहला एक हिस्सा था 38,800, उसके नीचे होने के चांसेस 10% है। एक दो ब्रोकर्स ने हमसे कहा, इसलिए हमको 10% लिखना पड़ा, नहीं तो हम ये हटा भी सकते थे, लेकिन फिर भी हमने 10% लिख दिया ताकि हर किसी की बात रखी जाए इस पोल के अंदर। दूसरा, चांसेस कहाँ है कटान होने के, 39,500 से लेके 39,800, जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर जो काम कर रहे हैं, इसी रेंज के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा है, 45%। थोड़ा एग्रेशन हुआ तो ये 30% वाला ब्रोकर्स वाला हिस्सा भी एक्टिव हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप एवरेज देख रहे हैं, मीन देख रहे हैं लास्ट के 2 का, जहाँ पे नंबर्स 45 और 30 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे 39,800 अराउंड मीन एरिया है, यानी कि वहाँ पे 17,000 और यहाँ पे 39,700 800 का एक एवरेज एरिया बनता है, जहाँ पर आके ये एक सीरीज़ जो एक्सपायर हो सकती है। तो ये पोल भी, और ना केवल पोल के बाद अगली सीरीज़ का ट्रेड भी। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एक एक्सपर्ट पोल हमने कराया और उसके बाद जानने की कोशिश की कि आज एक्सपायरी किन लेवल पर देखने को मिल सकती है। 29,800 ये एक अहम लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए वॉच करने के लिए, और निफ्टी के लिए भी रेंज आपको बताई गई। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है और साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। राज गांधी जुड़े हैं हमारे साथ गुजरात से। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम। जी जी, एक्चुअली मेरे पास NMDC है 119 के भाव से 410 शेयर है, और एक हिंदुस्तान कॉपर है मेरे पास 130 शेयर जो 126 के भाव से हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? क्या इनको एवरेज कर सकते हैं? 126 पर हिंदुस्तान, ठीक है। आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो NMDC पर आप पूछ लेते हैं सवाल। रुचित क्या सजेस्ट करेंगे? 107 पर इस वक्त चल रहा है और 119 की इनकी खरीदारी है। स्टॉक वैसे काफी समय से रेंज में ही है और ज्यादा कुछ चलता भी नहीं है। काफी तेजी से यहाँ पर गिरावट या बढ़त नहीं दिखती है NMDC में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो इनकी खरीदारी से हल्का नीचे ही है स्टॉक। NMDC पर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर क्या आउटलुक बन रहा है? चार्ट्स पे क्या लेवल देखेंगे? अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें? जी वेरी गुड मॉर्निंग। नो आई थिंक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं करंट लेवल्स पे स्टॉक को एवरेज आउट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम इतना पॉजिटिव नहीं है। और मैं अगर थोड़े लंबे समय के चार्ट्स देखूं तो जो मेजर सपोर्ट स्टॉक के आ रहे हैं वो 97 से 100 की रेंज में आ रहे हैं। सो मे बी नियर फ्यूचर में कभी भी ये थोड़ा करेक्शन और आता है 100 रुपए के अंदर, जब ये स्टॉक जाता है 97 टू 100 का रेंज, तो आइडियली वो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक को एवरेज आउट करने के लिए। तो फिलहाल आप अगर मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, लेकिन एवरेजिंग के लिए थोड़ा और डिप का इंतजार करें। ये रुचित की सलाह है। दिल्ली से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? प्रशांत जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी प्रशांत, अपना सवाल पूछिए आप। मैं सचिन बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ माफी चाहेंगे आपसे सचिन, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरा SBI का शेयर है मेरे पास 500 जी 514 के भाव पे है। 514 के भाव पर? हाँ, अभी वो क्या करूँ, सेल करूँ? ठीक है सचिन, जैसे तमाम ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने SBI खरीदा है और समय भी थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन शेयर में ज़्यादा कोई उत्साह दिख नहीं रहा है। 511 वाला 514 के भाव वाला शेयर इनका 509 रुपये 10 रुपये के आसपास है। रवि, SBI हालांकि देखिए बैंक को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए कि एक मजबूत बैंक है, फंडामेंटली बहुत सॉलिड है, लेकिन हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा चिंता में ज़रूर डाल रहा है। सचिन कितना समय देंगे अगर इस शेयर को तो ये मुनाफे में आ जाएंगे, और कब इनको निकलने की सलाह होगी? रवि देखिए मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, SBI एक ऐसा शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म पे आपको थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी बना के चलिए तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता रहता है, और ये डे टू डे ट्रेडिंग के लिए शेयर नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा मोमेंटम इसमें डाउन है। जहां तक अभी बात करें 509 रुपए चल रहा है, 480 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर सचिन जी का एक लॉन्ग टर्म विजन है, कम से कम 2 से 3 महीने का विजन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म विजन भी है तो भी 502 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें और वापस से एक बार को 516 518 के लेवल दिखा सकता है। तो मोमेंट्री भी यहाँ पर तेज है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुझे लगता है 480 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो ऐसा लेवल है जिसमें कि आप निवेश की रणनीति बनाएं और 580 का लक्ष्य रखें। मुझे लगता है बेहतरीन रिटर्न आपको ये दे सकता है बैंकिंग काउंटर में। और अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है राय SBI पर। अगला सवाल ले लेते हैं और दिल्ली से हमें प्रशांत जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है दीपक नाइट्राइट पर। 10,000 शेयर्स इन्होंने 515 के लेवल्स पर लिया हुआ है, तो शानदार मुनाफा हो रहा होगा इनको। तो इस वक्त क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली थी,
काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली यहाँ से और हमने देखा है कि 2020 के बाद जो एक रनअप देखा हमने, काफ़ी शानदार मुनाफा इनको भी हो रहा है। बट दिक्कत वाली बात यह है कि इन्होंने तो 2000 के ऊपर के भी लेवल्स देखे होंगे, स्टॉक ने उसी बीच अपना हाईज भी बनाया था, वो लेवल्स भी इन्होंने देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं निकल पाए और अब थोड़ा नीचे आ गया, तो थोड़ा मुनाफे में इनकी कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं दीपक नाइट्राइट के स्टॉक की अगर बात करें तो। रवि, आपसे सवाल होगा, क्या करें अभी दीपक नाइट्राइट में? पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे या फिर इसी को होल्ड करें? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि इस समय इनको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सर प्रॉफिट में आपको स्ट्रैटेजी जरूर अप्लाई करनी चाहिए। 3 नवंबर 2022 को इस स्टॉक ने 2350 रुपए 48 रुपए का हाई मारा और उसके बाद से अभी तक करेक्शन फेज में है। अब जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं इसको बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। पहला कि अगर ये 1750 के नीचे चलना शुरू हो जाए, कटना शुरू हो जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे 50% पोजीशन काट दीजिए, और जब ये 1650 का लेवल काट देता है तो पूरी पोजीशन काट लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ प्रॉफिट आपका थ्योरेटिकल रह जाएगा, प्रैक्टिकल प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। पहला स्टॉप लॉस फिर से नोट कर लीजिए, शॉर्ट टर्म पे 1750, लॉन्ग टर्म पे जब पूरी पोजीशन काटनी है वो है 1600 और 1650 के बीच के लेवल। अब अप साइड में अगर मोमेंटम आता है तो एक बार 2100 तक का मोमेंटम, जैसे ये 2000 के ऊपर या 1900 के ऊपर निकलेगा, आपको 2100 के लेवल दिखा सकता है। तो अगर 2100 1900 के ऊपर निकलता है तो पूरा इंतजार करते रहिए, 2100 का लेवल आता है, ईटी स्वदेश पे वापस से पूजा जी और अभिषेक जी को कॉल करके एक बार राय जरूर लीजिएगा, नहीं तो ये प्रॉफिट जो आप अभी बड़ा देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल प्रॉफिट रह जाएगा, आप कहीं पोजीशन गलत काट सकते हैं। ठीक है, दीपक नाइट्राइट पर रवि का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, पार्थ पटेल का सवाल लेंगे जो कि आया है फेसबुक के जरिए और इनके पास है लेमन ट्री होटल्स के शेयर, 4000 की संख्या है और 86 रुपए का भाव है। रवि, इस पर भी आपसे ही सलाह चाहेंगे लेमन ट्री को लेकर। लगातार एक्सपेंशन वाले मोड्स में है ये कंपनी, कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, और हमने देखा था कि शेयर का भाव 100 रुपए के ऊपर निकला था। उस स्तर से कहीं ना कहीं अब फंडामेंटली ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि थोड़ा सा कैश कम हुआ होगा एक्विजिशंस के बाद, लेकिन 86 वाला 76 पर है। आपकी सलाह क्या होगी, निवेशित रहें या फिर कुछ और राय होगी? अभिषेक जी, आप छुट्टियों पे जाते हैं तो आप समझ सकते होंगे कि अप्रैल में काफी छुट्टियां मिल रही हैं, 3-3 दिन की छुट्टियां काफी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्मियों का आगे सीजन आने वाला है उसमें होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लेमन ट्री ने जिस हिसाब से एक्विजिशन किए हैं और कैश उनका थोड़ा बर्न जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म में चाहे आप 3 महीने देखें, 6 महीने देखें, वैसे भी कोई भी होटल के स्टॉक जून जुलाई के पहले तो अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 100 रुपए का लक्ष्य वापस अचीव हो सकता है, बस एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है 62 और 65 के बीच का, लेकिन जितना लोअर लेवल्स आते हैं अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 100 रुपए और 110 रुपए के लक्ष्य जल्द अचीव हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है राय लेमन ट्री पर, आप होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को। अगला सवाल लेंगे और ये हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। विजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा सीएससी पे है, मैंने 600 शेयर ले रखे हैं 85 के भाव में। हेलो, 85 के भाव में, ओके। आपकी खरीदारी से तो काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। रुचित, क्या सलाह देंगे? सीएससी पर 85 के आसपास इन्होंने एंट्री ली थी और वहां से भी अब स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई दे रहा है। इसे लंबे समय के लिए होल्ड करने की राय देंगे? कोई रिकवरी आपको दिखाई दे रही है या फिर एग्जिट कर ले? तो फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव हमने देखा है। जो प्रीवियस स्विंग लो स्टॉक ने जून 2022 में बनाया था वो लो भी ये स्टॉक ने तोड़ा है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोमेंटम नेगेटिव कंटिन्यू रह सकता है और पॉसिबली हम लोग 58-57 तक के जो नेक्स्ट सपोर्ट्स है वहां तक का डाउन ट्रेंड हम नियर टर्म में देख सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी सेल ऑन प्राइस की रणनीति रखें, क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स थोड़ा ओवरसोल्ड है तो इन बिटवीन पुलबैक मूव्स आते हैं और 66 से 67 के आसपास मिलता है तो वहां पे स्टॉक में से एक बार एग्जिट करने को फिर देख सकते हैं। ठीक है, 67-68 रुपए के भाव आए तो आपको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं रुचित सीएससी के शेयर से। आशीष का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए और इनके पास है आरती इंडस्ट्रीज के शेयर 83,534 रुपए के भाव पर। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है ये शेयर,
और नीचे इसलिए है कि हमने देखा था शेयर को करीब करीब 900 रुपए के आसपास जाते हुए, वहां से लगातार एक प्रेशर वाला दौर चला है। 2 महीने का इनके पास समय है, ये बोल रहे हैं कि 2 महीने रुक सकते हैं। रवि, 2 महीने अगर समय देंगे तो क्या इनको प्रॉफिट होगा? 2 महीने में शेयर कितना चलेगा, कोई अंदाजा आपकी तरफ से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आशीष जी, 1 साल में 45%, 3 महीने में 17% स्टॉक गिरने के बाद और 900 के बाद अब अट्रैक्शन जरूर आपको दे रहा है, लेकिन अट्रैक्शन वाली कोई बात यहाँ पर आरती इंडस्ट्री में अभी नजर नहीं आ रही है। 507 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है और 510 रुपए के पास एसबीआई बैंक चल रहा है। मुझे लगता है पोजीशन स्विच कर लीजिए, 2 महीने में वो प्रॉफिट दे सकता है। इसमें निगेटिव लेवल्स थोड़े और देखने को मिल सकते हैं, 450 का लक्ष्य तक जा सकता है। तो मुझे लगता है 2 महीने बाद क्यों एग्जिट होना, अभी करके स्विच कर लीजिए पोजीशन को, थोड़ा प्रॉफिट उसमें बढ़ सकता है। ओके, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्रीज में आपको ये राय, आज स्टॉक 3% ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 महीने के लिए ये व्यू भी आपको शेयर कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। सुमित्रा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके सवाल आ चुके हैं हमारे पास। 3 स्टॉक्स हैं, एक एक करके राय ले लेते हैं इन पर। इंडिया पोस्ट रियल एस्टेट पहले देख लेते हैं। 2018 शेयर्स इन्होंने 83 पर एंट्री किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है इनको इस स्टॉक में भी। करीब ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक है इनके पास, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अगर देखेंगे तो वो इस वक्त 47 पर कारोबार कर रहा है, तो नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। और हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में एक गिरावट ही नज़र आ रही है। पिछले 6 महीने में ही करीब 30% से ज़्यादा स्टॉक टूट भी चुका है। यहाँ पर क्या सजेस्ट करेंगे रुचित, आप सजेस्ट करिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अभी निकल जाए या फिर बने रहे, कोई एक बाउंस का वेट करें? आई थिंक यहाँ पे फिलहाल तो ट्रेंड नेगेटिव है और कंटिन्यूसली हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं ये स्टॉक में विद इन द रियल एस्टेट स्पेस भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक मूव्स आता है इन बिटवीन, तो पुल बैक मूव्स पे स्टॉक में से एग्जिट करने के मौके ढूंढे। 54 से 55 के आसपास कोई पुल बैक मूव आता है तो आई थिंक आईपीएल को एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पे स्टॉक में से एग्जिट करने को देख सकते हैं। तो ये है राय आईबी रियल पर। 2 और स्टॉक है इनके पास। पहला तो है एम्फेसिस, 16 शेयर्स 2100 के ऊपर के लेवल से इन्होंने यहाँ पे भी एंट्री ली हुई है, थोड़ा ऊपरी स्तर पर है। और तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल, ये स्टॉक भी इन्होंने 105 पर लिया हुआ है और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। तो पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं इनके पास, तीनों में ही बहुत हाई लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली थी, समय पे निकल नहीं पाए और नुकसान झेलना पड़ रहा है, भारी नुकसान तीनों ही स्टॉक्स में। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से तो रुचित एग्जिट करने की राय दे रहे हैं, एम्फेसिस और तमिलनाडु पेट्रो, इसमें क्या करें? देखिए, एम्फेसिस को तो यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा जी थोड़ा सा मोमेंटम इस पे पॉजिटिव बन सकता है, तो अभी फिलहाल तो यही होगा कि एक बार को पोजीशन इस पे कंटिन्यू रखे। जहां तक तमिलनाडु की बात है, मुझे लगता है कि एक बार को इससे एग्जिट होना चाहिए और अगर आप किसी बैंकिंग काउंटर की तरफ मूव कर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। खास तौर से यूको बैंक है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट है, इन बैंक की तरफ मूव कर जाए तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ मूव करने की सलाह है। इन शेयर से निकल जाइए। अभिजीत का सवाल लेंगे जो कि आए हैं इंस्टाग्राम के जरिए और इनके पास है एमआरपीएल, 500 शेयर हैं 74 रुपए के भाव पर। जब भी हम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि एमआरपीएल जैसे शेयर, चेन्नई पेट्रो जैसे शेयर, ऑयल इंडिया, ये तमाम शेयर चलते हैं, लेकिन ये फैक्टर जो ही निकलता है ये शेयर उसी अनुपात में नीचे भी आ जाते हैं। 74 की खरीद इनकी है। इस शेयर को, एमआरपीएल को, हमने लास्ट ईयर 100 रुपए के ऊपर जाते हुए भी देखा था और अब देखिए 50 रुपए के आसपास के भाव है। 52 वीक जो हाई है 127-28 रुपए के आसपास का है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन। रवि, एमआरपीएल आपको लगता है कि वैल्यू है इसमें? क्या समय देंगे तो इनके भाव आ जाएंगे? अगर मन में कहीं ये आ रहा होगी क्या एवरेजिंग कर लें, अब तो 50 रुपए का हो गया है, क्या ये सही रणनीति होगी? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अब? देखिए, अगर अभिषेक जी इस समय एवरेजिंग की बात सोच भी रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पहला, इस समय स्टॉक जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में है।
यहाँ पर फंडामेंटल के अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पुअर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट पहले से पड़ा हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर डाल सकते हैं कि अगर 48 47 के नीचे ये क्लोजिंग करने में कामयाब होता है तो आपको एग्जिट होना चाहिए। और अगर एवरेज करना है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, नीचे जाने के बजाय ऊपर आने दीजिए। यानी कि अब 52 के ऊपर या 51 50 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप एवरेज करने की सोचिए, क्योंकि तब मोमेंटम कुछ हो सकता है पॉजिटिव यहां पर देखने को मिले। लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड है, 55 से 58 रुपए, इससे ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखा पाएगा। तो मुझे लगता है अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलना चाहते हैं तो आपके सामने रेंज नजर आ रही है, और ये जरूर रखिए कि 48 के नीचे इससे एग्जिट काउंटर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है राय MRPL पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और ट्विटर पर हमें ओम प्रकाश जी ने भेजा। इनका सवाल इलेक्ट्रॉनिक मार्ट पर है। 1000 शेयर्स इन्होंने 74 के लेवल पर लिया था जब स्टॉक नीचे आ रहा था, तब इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, शायद इस उम्मीद में कि स्टॉक चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखिए 1000 शेयर्स लिए हुए, इस वजह से 8000 के ऊपर से ज्यादा का नुकसान भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। रुचित, राय दे पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में क्या करें, एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? डेटा नहीं है, तो रिसेंटली अक्टूबर 2022 में स्टॉक लिस्ट हुआ है, तो टेक्निकली कुछ स्ट्रक्चर इतना बन नहीं रहा है फिलहाल। बट यस नो, ऑफ लेट जो मोमेंटम रहा है पिछले कुछ हफ्तों में वो क्लियरली नेगेटिव है। और यहाँ पे मैं जस्ट रेजिस्टेंस दे सकता हूँ कि 75 76 का रेजिस्टेंस कोई भी पुल बैक मूव में रहेगा। बट आई थिंक बेटर एक बार फंडामेंटल व्यू पे ये स्टॉक पे लेना चाहिए और फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया को शेयर को लिखकर ये व्यू। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। बाजार में हम देख रहे हैं कि अब बुल्स और बेयर्स के बीच में एक रस्साकशी वाला इस वक्त सेशन चल रहा है। बाजार ऊपरी इस तरह से फिर से नीचे आया है 17,000, जो कि एक बहुत ही मजबूत वाला हर्डल है, बाधा है। उसको पार तो किया था निफ्टी ने, लेकिन उसको सस्टेन करने में इस वक्त मुश्किल आ रही है, और उसकी वजह आपको बता देते हैं। इस वक्त 17,000 के स्ट्राइक पे जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में करीब 4 लाख सौदों का है, और उसके ऊपर 17,050 पे 2.5 लाख का। तो ये एक मेजर हर्डल के तौर पर आज काम करता रहेगा। देखना ये होगा कि शॉर्ट कवरिंग कितना सहारा दे पाती है बाजार को। खैर, इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। रवि और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और धैर्य बनाए रखने के लिए भी शो में। फिलहाल मुझे पूजा को दीजिए इजाजत।